ایک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نے کڈنی ہل پارک میں برڈ آئیوری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جہانگیر پارک اور پولو گراؤنڈ کے بعد اب اس پارک میں بھی برڈ آئیوری بنانے جا رہے ہیں۔ لاکھوں مقامی درخت اس پارک میں لگائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے تفریحی مقامات کی رونقیں بحال کرنے کے لیے میئر کراچی متحرک برڈ ایوری کے سنگ بنیاد کی تقریب۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں پارک میں 1.5 ایکڑ پر محیط ایریا پرندوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کڈنی ہل میں KMC نے ایک بین الاقوامی طرز کی برڈ ایویری اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا اور آج سے اس منصوبے کے اوپر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 120 دن کا ٹائم ہم نے اپنی ٹیم کو دیا ہے کہ 120 روز کے اندر اس برڈ ایویری کو آپ کو مکمل کرنا ہے اور مکمل کر کے پبلک کے لیے کھولنا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں پر 46 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سال 2026 ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ کام نہ کرنے والے کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ جو کانٹریکٹر کام کرے گا ایز پر دا اسپیسیفکیشن، کوالٹی کوانٹٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کام کریں۔ جو کام نہیں کرے گا اس کو بلیک لسٹ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ KMC بلیک میل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ بہتری کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ نارتھ ناظم آباد کی UC پر قابض شخص لاہور منتقل ہو گیا۔ جس سے کام نہیں ہو رہا وہ گھر چلا جائے۔ پیپلز پارٹی شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا نئے سال پر تحفہ۔ کل سے ملیر سے شارع فیصل تک ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر کا کہنا ہے کہ ڈبل ڈیکر بسوں کا کرایہ پیپلز بس کے برابر ہی ہوگا۔ فی الحال تجرباتی بنیاد پر ڈبل ڈیکر بسیں محدود پیمانے پر چلا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے اورنج لائن کو گرین لائن سے ملانے کے منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا۔ تفصیل اکثر شاہد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نیا سال حکومت سندھ کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ۔ کراچی میں کل سے ڈبل ڈیکر بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ روزانہ 1 لاکھ شہری کو سفری سہولیات ملے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے شہریوں کو جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ فراہم کی ہے۔ کل سے ڈبل ڈیکر بسیں روٹ پر ہوں گی۔ یہ عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ ہے۔ نئی EV بسیں بھی کراچی پہنچ چکی ہیں۔ مزید بسیں لائی جائیں گی۔ ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلانے جا رہے ہیں، وہ کل سے سروس شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو اور مزید سہولیات جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے یہ بسیں آئیں گی۔ شرجیل انعام میمن نے اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کرنے کا افتتاح کر دیا۔ بولے گرین لائن اورنج لائن میں بھی خواتین کے لیے الگ الگ بسیں شروع کی جائیں گی۔ ہم نے اب گرین لائن اور اورنج لائن میں بھی جو ہے وہ پنک بسز کی سروس شروع کی، جس سے صرف خواتین کے لیے الگ بسز بھی ہوں گی۔ اورنگی سے نمائش چورنگی تک اب مسافروں کو 2 مختلف بس سروس کے لیے الگ الگ ٹکٹ لینا پڑتا تھا، تاہم اب ایک ہی ٹکٹ پر مکمل سفر ممکن ہو سکے گا۔ اب پیسنجرز کو ڈبل جو ہے وہ خرچہ یا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ ایک ہی کارڈ پر، پاکستان کی یہ واحد BRT ہے جس میں ایک ہی کارڈ پہ آپ جو ہے اورنج لائن BRT اور گرین لائن BRT پہ سفر کر سکیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ پر چلنے والوں نے معصوم بچی کو ورگلایا۔ والدین بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21۔ سندھ کابینہ نے حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے صوبے میں دانش اسکولوں کے قیام اور صنعتی علاقوں میں سڑکوں کی بحالی اور نکاسی آب کے منصوبوں کے لیے 2 ارب 90 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تفصیلات آج جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ کابینہ متحرک ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت بیٹھک میں متعدد اہم فیصلے کر لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء، مشیروں، معاون خصوصی اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلے سے حادثات میں متاثرہ فریق کو قانونی حق مل گیا۔ سندھ کابینہ نے تھرڈ پارٹی انشورنس کے ذریعے معاوضوں کی ادائیگی کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے محکمہ بین الصوبائی رابطہ کو وفاقی حکومت کے ساتھ مؤثر رابطوں کے لیے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کراچی اور ٹنڈو محمد خان میں دانش اسکولوں کے قیام کے لیے زمین کی منظوری بھی دے دی۔
काबीना ने सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरामीम की मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद जमीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ई ट्रांसफर मुमकिन हो सकेगा। सिंध काबीना ने मलीर, लियारी और चनेसर टाउन में कायम 21 म्यूनिसिपल स्कूलों को TCF के सुपर्द करने की भी मंजूरी दे दी। TCF स्कूल कायम करेगी, जबकि जमीन टाउन म्यूनिसिपल इंतजामिया फराहम करेगी। इसके अलावा कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए सिंध काबीना ने 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी, जिससे सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की बहाली की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे के दीगर सनती इलाकों के लिए भी अलहदा तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। सिंध काबीना ने ये भी फैसला किया है कि सूबे भर में अवामी खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आजिज जमाली, सिटी 20। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महंगाई के चक्की में पिसे आवाम के लिए अहम खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे तक कमी की तजवीज़ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज आ गई। जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए 60 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे से कम होकर 252 रुपए 85 पैसे हो जाएगी, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज है। और मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 265 रुपए 65 पैसे से कम होकर 257 रुपए 6 पैसे का हो जाएगा। जराये के मुताबिक 1 लीटर मट्टी का तेल 8 रुपए 92 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल 6 रुपए 62 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज है। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 1 जनवरी 2026 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। कुरंगी जमान टाउन UC2 में लाइनें डालने के बावजूद मकीन पानी से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं कि कुरंगी 4 नंबर रोड पर पानी की लाइन को सीधा करना है, जिसके लिए रोड की खुदाई करने के लिए KMC की इजाज़त दरकार है। लाइन का मसला हल हो जाए तो पानी आना शुरू हो जाएगा। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। कराची में पानी की किल्लत का मसला बरकरार। कुरंगी में जमान टाउन UC2 में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कई साल गुजर गए लेकिन पानी ना मिल सका। महंगे दामों टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। UC2 के काउंसलर सुफियान कहते हैं हम कई सालों से परेशान हैं। 8 माह कबल वाटर कॉरपोरेशन से इजाजत लेकर पानी की लाइनें तो बिछाई गई, मगर एक मुकाम पर लाइन गैर मुतवाजन हो गई, जिसके बायस पानी की फरहमी शुरू न हो सकी। लाइन जो है ना बहुत आड़ी टेढ़ी है, जिसकी वजह से पानी जो है ना उसके अंदर रुकावट आ गई है। अगर ये इसकी इजाज़त मिल जाए, रोड कटिंग की इजाज़त मिल जाए तो पानी जो है ना बहुत तेजी से आएगा और कम से कम कोई 4-4.5 हजार घरों को इसका फायदा होगा। इलाका मकीन भी लाइन डलने के बावजूद पानी न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं दोबारा सड़क खोदनी पड़ेगी तभी पानी आएगा। KMC का रोड है 4 नंबर का, उसकी अप्रूवल का एक इशू चल रहा है। हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची से दरख्वास्त है 4,500 घरों को 4,000 घरों को पानी पहुंचाने के लिए उस लाइन को बैलेंस करवाने की इजाज़त दी जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक अगर KMC सड़क की खुदाई की इजाज़त दे दे तो चंद दिनों में काम मुकम्मल हो सकता है और 4,500 से ज़ायद घरों को पानी की फरहमी मुमकिन हो जाएगी। इलाका मकीनों ने मेयर कराची से मसला हल करने की अपील की है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, हर तरफ फैला गंदा पानी। शहर कैद के दीगर इलाकों की तरह PIB कॉलोनी की भी अलमनाक कहानी है, जहां जेल चुरंगी के एतराफ़ के मकीन अजियत का शिकार हो गए हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। कराची में टूटी फूटी सड़कें आवाम का मुकद्दर बन गई। मुतल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए दर्दसर। PIB कॉलोनी जेल चुरंगी के एतराफ रोड पर गड़े पड़ने और सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना, जबकि एतराफ के इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गई। रिहायशियों का कहना था कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। अरसे दराज से सड़क टूट फूट का भी शिकार है। ये सालों से इसी तरह से है और ये जो है ना हम यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं तो ये यहाँ पर जो है ना भंगी वगैरह आते हैं, वो कपच्ची मारते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर ये जो है ना 15-20 दिन बाद फिर मुस्तकिल ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो जाता है इसकी वजह से। कोई ग्राहक अंदर नहीं आ सकता, गटर का पानी आता रहता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि सीवरेज का निजाम बेहतर करके सड़क की फौरी मुरम्मत की जाए। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
न्यू गोलीमार गुलबहार सैनिटरी मार्केट में 35 बरस बाद इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए दुकानों की गैर कानूनी चबूतरे और दीगर तामीरात में इस्तेमाल की जा रही है। इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट नाज़माबाद के मुताबिक ये ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नाज़माबाद में तब्दीली की शुरुआत 35 बरस बाद गुलबहार मार्केट का नया रूप सामने आया। गुलबहार सैनिटरी मार्केट नाज़माबाद में 35 बरस बाद तज़ीन व आराइश के कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसकी शुरुआत इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन से की गई है। इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट नाज़माबाद राशिद कमाल के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी जारी ये इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन 1 हफ्ते से जारी है, जो 1 माह तक जारी रहेगा। जिस तरह लोगों ने अपने फुटपाथ जो 10-10 फीट के 8-8 फीट के रोड को छोटा कर दिया है, तो उसको पहले मार्किंग की गई है, उनको 1 फीट 2 फीट की जगह दी गई है, उसके बाद वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है। आज देखिए हमने गुलबहार का एरिया जो है ये पूरा रोड क्लियर करा है। ये 40 साल बाद जो है यहाँ पे आज इसके इंक्रोचमेंट का खात्मा किया हमने। हुदूद से तजावज़ करने वाली दुकानों के चबूतरे, सनशेड और दीगर तजावीज़ात को हैवी मशीनरी के जरिए मस्मार किया जा रहा है। इस कार्रवाई पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है और साथ ही इलाके के दीगर मसाइल के हल का भी मुतालबा किया है। सुबह 5 बजे से जारी है। डीसी साहब और डीसी साहब चेयरमैन साहब की हिदायत के ऊपर ये काम चल रहा है और हैवी मशीनरी हमें दी गई है। यहाँ के इलाका अवाम बहुत खुश हैं, बड़े खुश हो रहे हैं इनसे। बहुत अच्छा काम हो गया है, ये रोड हमारे खुल गए, जगहें खुल गई हैं। शहरियों का कहना है कि इंसदादे तजावीज़ात से न सिर्फ मार्केट की खूबसूरती बहाल होगी बल्कि आमदोरफ्त में भी आसानी पैदा होगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। एमजिना रोड पर वकला का यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर एहतजाज का मामला। वकला ने 7 घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सदर कराची बार का कल से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। सिटी कोर्ट में पुलिस का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा। आपको बता रहे हैं मेजिना रोड पर वकला का यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर एहतजाज का मामला है। वकला ने 7 घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिया है। सदर कराची बार का कल से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। सिटी कोर्ट में पुलिस का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा। आपको बता रहे हैं कि सदर बार का कल से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। आमिर नवाज वड़ाइच की जानिब से कहा गया कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। कराची बार वकला के साथ है। रजब भट्ट के साथ आए लोगों ने वकला पर हमला किया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि वायरल वीडियो एडिट शुदा है, पहले की वीडियो नहीं दिखाई गई है। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने का मामला है। सदर बार का कल से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और सिटी कोर्ट में पुलिस का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा। आमिर नवाज वड़ाइच की जानिब से कहा गया कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। इस पर बात कर लेते हैं। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताएगा, 7 घंटों बाद वकला की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये वकला का एहतजाज जो आज शाम से जारी था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। वकला का कहना था कि जो रजब भट्ट ने वकला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है तो वकला की भी जो है वो उनके मौक़िफ़ सुनकर उनकी भी FIR दर्ज की जाए। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा है कि जब तक वकला का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता कराची सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल रहेगी और अदालत में पुलिस के दाखिले पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। कराची बार के सदर का ये भी कहना था कि वो वकला के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि वकला का भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर जब तक नहीं किया जाता तो हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, आज जवाद आसिफ अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल